Good morning, class. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Bill of Exchange. It is chapter number 18 as per your book. So, firstly, the meaning of Bill of Exchange. This Bill of Exchange term arises when the credit sale or credit purchase is there in your business. Means when we are doing business transaction on credit basis, at that time the Bill of Exchange term arises. Now, if you sold goods to on credit basis to one person to your customer, means he has to pay the money to you later. Not now, he is paying the money because the sales is on credit basis. So how can you trust on that person ki that he will pay your money in future? Definitely. So for that we need a bill. A bill is a proof, a documents on the basis of which we need to do such kind of credit transactions. Like मैंने किसी पर्सन राम को 10,000 रुपीज़ की गुड सेल्स की हैं and Ram said that I don't have now money to pay, so I will pay your amount after 2 months. राम इज़ माई रेगुलर कस्टमर, तो ठीक है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है, बट मे बी वो फ्यूचर में रिफ्यूज़ कर दे दैट आई एम नॉट हैविंग इनफ मनी या आई एम नॉट एबल टू पे योर मनी. सो उस सिचुएशन में हम उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी या केस इम्पोज नहीं कर सकते. सो फॉर दिस, फॉर our safety, we are passing a bill between the two persons. Means the purchaser and the seller here pass the bills between each other कि जो भी अमाउंट की आपने गुड्स सेल की हैं उस बिल में द अमाउंट ऑफ गुड्स आर मेंशन. द टाइम पीरियड इज ऑल्सो मेंशन कि आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड ही विल बी एबल टू पे योर अमाउंट, दैट इज ऑल्सो मेंशन. The signature of both the parties are there on that bill, so that is called the bill of exchange. कि a bill is exchange between the buyer and the seller for the credit transaction. That's why it is called the bill of exchange, and it is an important document. As this is in the past it was known as हुंडीज. आपको याद होगा हमने BST में किया था, जब हम पुराने टाइम में पुराने ज़माने में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए जो बिल्स पास करते थे उनको हुंडीज बोला जाता था. नाउ दे आर नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रोमिसरी नोट, एंड इन आवर कंट्री दे आर वर्किंग अंडर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. So this is the meaning of bill of exchange. Now look at the definition of this bill of exchange. A bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. कि this bill of exchange is an instrument which is in written sense. इसमें conditions mention होती हैं कि कितने अमाउंट ऑफ मनी की आपकी ये जो ट्रांजेक्शन हुई है और कितने टाइम पीरियड के बाद किस पर्सन को वो पैसा पे किया जाएगा. So all the things are mentioned in your bill of exchange. Some features of bill of exchange: it must be in writing, it must contain an order to make the payment, the order must be unconditional, the amount of bill must be defined, the date of payment also mentioned, it must be signed by the maker, a drawer of the bill, and it also be signed by the acceptor. मीन्स जो सेलर है और बायर हैं दोनों इसके ऊपर साइन करेंगे. अब ड्रॉयर और ड्रॉई कौन होता है ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. द अमाउंट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द बिल. द अमाउंट इज़ टू बी हु मीन्स कि दिस अमाउंट इज़ टू बी पे टू द पर्सन. उस पर्सन को किसको पे किया जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो टू बी मैंशन इन दैट बिल. इट विल बी अ स्टैम्प ऑन इट. जो स्टैम्प प्रूफ होती है, दिस इज़ अ कोर्ट स्टैम्प जो प्रूफ होती है कि दिस ट्रांजेक्शन इज एज पर द कोर्ट, एज पर द एक्ट इज वैलिड. नेक्स्ट वी हैव द पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज. एज यू कैन सी इन योर बुक देयर आर 3 parties. द फर्स्ट इज ड्रॉयर, ड्रॉई एंड द पेई. द फर्स्ट इज द ड्रॉयर. ही इज़ द सेलर. सेलर मतलब जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर है, जो गुड्स को बेच रहा है, दैट पर्सन इज़ द सेलर. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रेडिटर, जिसने क्रेडिट में गुड्स की सेल की हैं और उसको वो पैसा लेना है. बिकॉज ही इज़ द सेलर, सो ऑब्वियसली ही हैज़ टू रिसीव द मनी. सो ड्रॉयर इज़ द पर्सन हु सेल्स द गुड्स, मीन्स द सेलर्स. सेकेंड इज कॉल्ड द ड्रॉई. ड्रॉय इज़ द परचेजर और द डेटर, मतलब
जिसने गुड्स खरीदी हैं, जिसको पैसा देना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द ड्रॉई. सो ही इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ दैट बिल एट व्हाट टाइम पीरियड इट इज़ मेंशन इन द बिल. सो हेयर जो सेलर है वो बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉई पर. ड्रॉई उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा कि ओके फाइन, आई विल बी एबल टू पे योर अमाउंट विद दिस बिल आफ्टर 2 months. सो दैट ड्रॉई इज़ द एक्सेप्टर ऑल्सो. बिल यहाँ पर जो सेलर है वो लिखेगा और उसके ऊपर साइन करेगा एक्सेप्टर या ड्रॉई कि मैं आपका पैसा 2 महीने के बाद इस बिल के थ्रू पे कर दूंगा. नेक्स्ट वी हैव द पेई. पे इज़ द पर्सन टू whom द पेमेंट इज़ टू बी मेड. जिस पर्सन को पेमेंट करनी है तो ऑब्वियसली वही पे ही है. तो यहाँ पर ड्रॉई ही आपका पे ही होता है. और सम टाइम अगर आपके पर्सन ड्रॉई के पास मतलब सपोज़ मेरे पास टाइम नहीं है मनी रिकवर करने के लिए, या मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पैसे को कन्वर्ट करने के लिए कैश के में उस टाइम पीरियड पर जाके पैसे ले सकूं, तो मेरे बिहाफ पर कोई भी पर्सन उस पैसे को कलेक्ट कर लेगा. सो द पर्सन who is collecting the money on my behalf, and here the bank is also maybe the payee. Payee is the, I said the drawee. The drawee is the payee here. Sorry, the drawer is the payee here. The drawer जो पर्सन जिसको पैसा लेना है या तो वो पैसा लेगा, या उसके पास ऐसा ही सेट कि टाइम नहीं है तो उसके बिहाफ पर अगर कोई थर्ड पर्सन मनी की कलेक्शन करता है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड द पेई. सो ही इज़ द पेई. They give an example for this कि फॉर एग्जाम्पल करुणा सागर ने न्यू दिल्ली को सेल्स की हैं गुड्स प्रेम सागर को 5 लाख रुपीज़ की क्रेडिट बेसिस पर. सो करुणा सागर इज़ द सेलर हेयर एंड द प्रेम किशोर इज़ द परचेजर हेयर. सो करुणा सागर इज़ नोन एज द ड्रॉयर एज यू कैन सी, एंड प्रेम सागर इज़ कॉल्ड द एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई ऑफ दिस बिल. नाउ look at the specimen of bill of exchange. This is the specimen या format. It is mentioned here कि उसका address, amount of the bill, stamp. It is mentioned कि 2 months के बाद वो मेरे 5 लाख रुपीज़ पे कर देगा. यहाँ पर दोनों पर्सन के सिग्नेचर्स हैं, ड्रॉयर के भी और ड्रॉई के. सो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. Now, what are the advantages of this bill? First is helpful in the purchase and sale of goods on credit basis. जब आप credit basis पर transaction कर रहे हो तो वहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी नहीं आती बिकॉज दिस बिल इज़ एन एविडेंस. लीगल डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, एज पर द लॉ इट इज़ लीगल. डिस्काउंटिंग फैसिलिटी. इफ़ द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द बिल विद हिमसेल्फ, इफ़ ही नीड्स मनी बिफोर द टाइम पीरियड, मतलब अगर मुझे 2 महीने के बाद बिल को कैश में कन्वर्ट करवाना था और मुझे 2 महीने से पहले ही पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बैंक में जाकर उस बिल को टाइम से पहले डिस्काउंट करवा सकती हूँ. नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट पॉसिबल हेयर. एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने राम को गुड्स सेल्स की हैं क्रेडिट बेसिस पर, राम को मुझे 10,000 रुपये देने हैं, तो राम मुझे 10,000 रुपीज़ देगा और वही 10,000 मैं अपने किसी और पर्सन को जिसको मुझे देना है उसको पे कर रही हूँ. सो दिस इज़ कॉल्ड द एंडोर्समेंट. सो इन केस ऑफ बिल दिस इज़ पॉसिबल. आप किसी से बिल लेकर उस बिल को किसी और पर्सन को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर. आपको बार बार किसी पर्सन को याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको टाइम पीरियड फिक्स हो चुका है. 2 महीने से पहले आपको उसको रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है. हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशंस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पीपल विल प्लान देयर कैश ऑपरेशंस कि हाउ मच मनी दे हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच दे हैव टू रिसीव. Convenient means of making foreign payments. If you are doing business at international level, so in that kind of foreign transaction, this kind of bill of exchange is a convenient mode for the making payment. Saving of money in circulation. With the help of this bill, जो money circulation में होती है that can be saved, और जो saving of wear and tear of currency is also beneficial for here for the transactions. Convenience for the purchaser. हेयर द परचेज़र इज़ एन कन्वीनियंट मेथड, क्योंकि उसके पास अभी टाइम पीरियड है मनी अरेंज करने के लिए, क्योंकि उसको अभी 2 months का टाइम पीरियड मिल चुका है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा टाइम पीरियड में मनी अरेंज करना. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द प्रोमिसरी नोट. दिस इज़ सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज. वही चीज़ है कि क्रेडिट में सेल्स की है, आपको यहाँ पर दोनों की कंसेंट पर एक बिल पास होगा. दैट बिल इज़ नोन एज प्रोमिसरी नोट हेयर.
बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द बिल एंड प्रॉमिसरी नोट हेयर. जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज था उसमें जो सेलर है वो बिल बना कर देता है, बट इन दिस promissory note is a written instrument containing all the unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to a certain person after a particular time period. यहाँ पर जो आपका पैसा देने वाला है मीन्स जो ड्रॉई है वो आपको बिल बना कर देता है. जो प्रीवियस हमने किया था उसमें आपका ड्रॉयर बिल बनाता है, ड्रॉई उसके ऊपर साइन करता है. हेयर द परचेजर ऑफ द गुड्स और द डेटर हिमसेल्फ मेक अ नोट और साइन इट and give this to the person, to the seller, ki I will pay your money after 2 months. So this is called the bill of exchange. Same things are there. This is in written sense. This is a promissory note. He has to promise that after that time period I will pay your money. The time period is fixed. Both have to be signed there. The person, the payee or the drawer or the drawee both have to be signed on this. The name of the payee is also to be mentioned it. The promissory note cannot be made payment to the bearer. मतलब जिस पर्सन को देना है वो सिर्फ उसी को देगा, किसी और को पैसा पे नहीं करेगा. It must be stamped according to the value. Same as it is, we have the format of the promissory note. Now, the parties in the promissory note. There are only two parties. One is the maker and the second one is the payee. Maker is the debtor here, जिसने बिल बनाया है, और पे इज़ द पर्सन जिसको पैसा मिलेगा, मीन्स द सेलर हेयर. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज थी, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई. और जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें 2 ही पार्टीज होती हैं, मेकर एंड द पेई, मीन्स सेलर एंड द बायर ओनली. नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Next topic is date of maturity or days of grace. This is a simple term that I'll tell you with an example. Look at in your books, illustration number 1. The date of bill 1st of January 2017. हमने जब क्रेडिट में ट्रांजेक्शन की तो हमने बिल बनाया 1st of January 2017 को हमने ट्रांजेक्शन की है, और टाइम पीरियड फिक्स हुआ कि 2 मंथ्स के बाद हम उसकी पेमेंट करेंगे. तो अगर आप 1st of January से 2 मंथ्स के बाद का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 2 मंथ्स होंगे जनवरी, फरवरी गया, एंड 1st of March को आपको उसकी पेमेंट करनी होगी. सो द मैच्योरिटी डेट इज़ व्हेन यू हैव टू पे द मनी, प्लस उसमें हम ऐड करते हैं 3 days ग्रेस पीरियड के. मीन्स हम उस पर्सन को 3 दिन और एक्स्ट्रा देते हैं एज अ ग्रेस पीरियड, सो ही नीड 3 more days फॉर मेकिंग पेमेंट. तो अगर आपने 1st of January को ट्रांजेक्शन की है 2 मंथ्स के पेमेंट के लिए, तो एज पर दिस हमारी डेट बन रही है 1st of March, बट यू हैव टू ऐड 3 days एज ग्रेस पीरियड. इट इज़ compulsory for all the transaction that you will give 3 days also. So the date of the payment is 4th of March. Now this is the maturity date. On this date you have to make the payment of the bill. So this is called the maturity date. मतलब जितना भी टाइम पीरियड होगा उसमें 3 दिन आपको डेफिनेटली प्लस करने ही करने हैं. अब इन योर बुक्स हर चीज़ को प्रॉपरली कंसीडर किया है बुक में कि लाइक 2016 है, सो दिस इज़ अ लीप ईयर. 28 मंथ होते हैं फेब के मंथ्स, 28 डेज होते हैं फेब के मंथ्स में. रेस्ट ऑफ द मंथ्स में किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 डेज होते हैं. दे विल ऑल्सो कंसीडर द संडेज ऑल्सो, एंड दे विल कंसीडर द गस्टेड हॉलीडेज ऑल्सो. सो तो ये जो डेट्स हैं बहुत सारी इन्होंने हर चीज़ को कंसीडर करने के बाद ही बुक में सोल्यूशन किया है. बट आप लोगों को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप हर उस ईयर के गस्टेड हॉलीडेज, संडेज या ये सब कुछ कैलकुलेट करने लगे तो आपको डेट्स निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा. सिंपल फॉर यू, जो भी डेट होगी मैच्योरिटी डेट में आप सिर्फ 3 days प्लस करना. यू नॉट नीड टू कैलकुलेट द इट मे बी द संडे गस्टेड हॉलीडे था या नहीं था, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ इट इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन कि मैच्योरिटी डेट पर गस्टेड हॉलीडे है तो आप उससे नेक्स्ट डे की डेट पर बिल को मैच्योर करेंगे. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको जो भी आपकी मैच्योरिटी डेट आ रही है उसमें प्लस 3 days ऐड करने हैं ग्रेस पीरियड के. द डेट विल बी द एक्जैक्टली मैच्योरिटी डेट. उससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है,
यू जस्ट हैव टू कंसीडर दिस थिंग. कोई लीप ईयर कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, किसी में मंथ के डेज नहीं कैलकुलेट करने हैं, बस आपको सीधा मेचोरिटी डेट प्लस 3 डेज उसमें ग्रेस ऐड कर देना. एज पर माई चेकिंग दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा 31 दिन 30 दिन 28 दिन संडे मंडे इस तरह से कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. सो यू जस्ट रिमेंबर द टाइम पीरियड प्लस 3 days ग्रेस पीरियड इज़ कॉल्ड द मेचोरिटी डेट. दैट इज़ इनफ. अगर बुक में और आपके डेज में 1-2 दिन ऊपर नीचे आ रहा है तो बस यही समझिएगा कि बुक वालों ने संडे लीप ईयर्स और हर चीज़ को कंसीडर किया है, जो मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ. सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर है हमारा काउंटिंग ट्रीटमेंट, मीन्स जो जर्नल एंट्रीज हैं इस चैप्टर में. इट इज़ अ ईजी चैप्टर और इसमें से 50% आपका चैप्टर कट चुका है एज़ पर द रिवाइज सिलेबस. तो बहुत छोटा सा चैप्टर बन चुका है ये. जो इसकी जर्नल एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उतने आप लोगों को जब तक आप लोगों को यू जस्ट रीड आउट द थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू एंड टेक केयर.